प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि आज फिर से एक बार हम बाइबल अध्ययन के लिए जमा हो सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, we want to praise God for this time that He has given to us. So today also we can gather together for this evening Bible study, and I know that all of us are being blessed as we study the Word. As you know, my friend, that nowadays we are studying the book of Philippians, and here St. Paul has many things to teach us and talk to us. We are all busy in our lives, especially today is 1st of September, and I know that spontaneously, perpetually things are becoming easier now. Things are opening up, and by the grace of God, we have all gone through this 5 months of uncertainty pandemic, and by the grace of God, we know that things have become improved today, and gradually it will improve. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसके दया से बातें अब सामान्य हो रही हैं, और हमारी आशा कि बहुत ही जल्द प्रभु की दया होगी तो हम कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर आराधना में मिल सकेंगे. मैं ये चाहता हूँ कि जब हम आराधना में मिलेंगे, फिर भी अगर प्रभु ने चाहा तो हम इस बाइबल अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे शाम की, जिससे कि हम आत्मा बढ़ते चले जाएं, खास करके इस साल. और बहुत से और बातों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है. मैं चाहूँगा कि कुलुस्सियों की पत्री जब पूरी हो जाएगी, इसके बाद कुलुस्सियों की पत्री आएगी, फिर हम प्रेरितों काम के 1 से 12 अध्याय तक अध्ययन करेंगे. इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इब्रानियों की पत्री की. इब्रानियों की पत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उसके बाद अगर प्रभु ने चाहा तो हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे अपने इस बाइबल अध्ययन में. मैं चाहता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा, आई वांट दैट थ्रू दिस स्टडी we may continually study the Word of God, continue to study the Word of God, so that we may understand the deeper meaning of Word of God, and thus we are grown in the spiritual life. मित्रों, ये कलीसिया जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया है, ये एक अनोखी कलीसिया है. यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, करते हैं, और बहुत से लोग वचन को अध्ययन करने के भूख अपने अंदर रखते हैं. There are many in this congregation, in English, Hindi, Nepali, who has deep down their heart the hunger, the appetite to understand the Word of God, and that is one of the greatest sign for the church growth. And I have sensed this in my 15 months of ministry here, last 15 or 16 months, and I hope that most of you agree with me that we want to study the Word of God, and God is there to help us and guide us and lead us. So shall we study the Word of God, and let's pray as we start our study this evening. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है. हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं, और चाहते प्रभु कि आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करता कि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें और अपने आप को आपके योग्य बना सकें. लॉर्ड, वी प्रे as we start this study this evening, Lord, prepare hearts and minds so that we may understand, comprehend the deeper meaning of your word, and able to grow in you. In Jesus' matchless name I pray. Amen. हम लोग देखते हैं इस अध्याय को, पहले अध्याय को फिलिपियों के, उसके आखिरी पदों को, और आज हम देखेंगे 27 पद से लेकर के 30 पद तक क्या लिखा है. 27 पद में पहली बात देखते हैं. संत पौलुस कहते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Now, in this particular verse of 27, St. Paul has his desire for the people in Philippi. And as you all know how this church started during his second missionary journey, St. Paul's,
and he and Silas, they are working hard, and they even could face death also, because they were beaten up and put into the prison. But miraculously Lord saved them from there. They escaped because of God's grace, and because of the earthquake, the jailer and his family believed, and before that, that lady who was a slave came to Christ, and then also before that, Lydia has accepted the Lord. So there's a miracle, and that all happened because they listened to the voice of God, someone pleading them from Macedonia that come over and help us. And so when they decided to go, there was miracle after miracle after miracle. मित्रों, ये कलीसिया की जो शुरुआत हुई है, फिलिपी की कलीसिया की, जिसके लिए कहा गया कि ये यूरोप की प्रथम मसीही कलीसिया है, प्रथम वो कलीसिया है जो बनी यहाँ पर यूरोप के अंदर। यहाँ पर प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। पौलुस और सिलास यहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो एशिया में जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ लिखा है कि प्रभु की आत्मा ने उन्हें एशिया में जाने से मना करा, और वो मैसेडोनिया में आए, मकदूनिया में आए, जहाँ पर ये फिलिपी जो शहर था वहाँ रहे वो, और प्रभु का वचन वहाँ फैला और कलीसिया की स्थापना हुई। अब पौलुस यहाँ पर कहते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ना हम में से हर एक ये चाहता, everyone who believe in Jesus Christ want that our life, our day-to-day life should become worthy of the gospel. जिस पर हम विश्वास करते हैं, अगर हमने उस पर विश्वास करा है, ग्रहण करा है, स्वीकार करा है, तो हमारा जीवन वचन के आधार पर होना चाहिए। वचन के आधार पर होने का मतलब है कि हम अपने पर घमंड ना करें, लेकिन पूरे तरीके से संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसमें बढ़ते चले जाएं। अब मैं कुछ पदों को आज यहाँ पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य कैसे बने। हम देखना चाहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर हम इस बात को समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि संत पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे लिए और उन सब के लिए जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, और उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे उसके 24 पद तक, जहाँ पर कुछ बातों का वर्णन है, जहाँ मसीह जीवन के संदर्भ में कुछ गहरी बातों का वर्णन है। I like to quote few verses from the letter of James, chapter 2, verses from 18 to 24. अब क्या लिखा है देखिए यहाँ पर। वरन कोई ये कहता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यानी हमें जब यीशु मसीह पर विश्वास हम करते हैं, जो हमारा विश्वास है वो कार्यकारी होना चाहिए। कई बार हम केवल गवाही देते, मुंह से बोलते हैं कि हमने ये करा, प्रभु ने हमारे लिए ये करा, और ये हो गया और वो हो गया। अच्छी बात है, इस गवाही में कोई दो राय नहीं है। प्रभु ने अगर आपके जीवन को छुआ है तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन क्या जो हमारा विश्वास है उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर याकूब ये कहता है यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य के जीवन के बारे में। वरन कोई ये कहता है तुझे विश्वास है कि मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मित्रों, इसका मतलब यह है कि जो विश्वास हमारे और आपके अंदर है वो विश्वास कार्यकारी होना चाहिए। द फेथ यू हैव इनकलकुलेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी ट्रांसलेटेड, should be seen in our work. Otherwise, faith may become only faith, and if it doesn't go beyond that, then it is a mere faith, word faith, that we utter faith. I am to read in English. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works.
You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from work is useless? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? अब यहाँ पर साफ लिखा है, यहाँ लिखा है, हे तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते थराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा? अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कर्मों के द्वारा साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। You see that faith was active among his work and faith was completed by his work. तो जब हम मसीह का अनुसरण करते हैं, जब हम सुसमाचार के योग्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमारा जो विश्वास है वो हमारे कामों से दिखना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि हम विश्वास बहुत कुछ करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? सवाल यहाँ पर पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम विश्वास करते हैं कि हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, नियमित रूप से करनी चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए, क्या हम ऐसा करते हैं? दूसरा सवाल। तीसरी बात, वो कहता है कि जब हम इस संसार में उसके नाम से जाने जाते हैं तो क्या हम अपने जीवन के द्वारा उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं ताकि लोग कहें कि ये प्रभु के लोग हैं और वो भी अपने जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सोचने लगते हैं? ये तीसरी बात। फिर हम कहते हैं कि हमें प्रभु की सेवा के लिए अपने जो उसने हमें दिया है उसको लाने की आवश्यकता, भेंट लाने की आवश्यकता। वचन में लिखा है, ईश्वर कहता है कोई मेरे भवन में खाली हाथ ना जाए। क्या हम करते हैं? और आखिरी बात, वचन में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। इट इज रिटन दैट वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर हिज सेकंड कमिंग। एम आई डूइंग दैट? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो ये 4-5 मुख्य बातें, और भी बहुत सी बातें हैं। हम प्रार्थना के बारे में सोचें, हम सेवा करने के बारे में सोचें, हम दूसरे की मदद करने के बारे में सोचें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के बारे में सोचें। क्या ये सारी बातें मसीह के अनुकरण करने के अंदर हमारे अंदर पाई जाती हैं? अगर नहीं पाई जाती हैं तो हमें ध्यान देने की, सोचने की आवश्यकता, क्योंकि ऐसा ही जीवन प्रभु हमसे चाहता। आगे ने लिखा है यहाँ पर, और पवित्र शास्त्र के वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए वो धर्म गिना गया और वह परमेश्वर के मित्र कहलाया। इस प्रकार से तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 23rd verse and 24th verse. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith alone. Now these are all connected with our practical Christianity. ये सब कुछ, इसका जो संबंध हमारे जीवन के व्यवहारिक मसीहत से, जो भी हम विश्वास करते हैं कि हम उसके अनुरूप चलते हैं। और यहाँ इस पत्री के अंदर पौलुस कहते हैं फिलिपी के विश्वासियों को, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, उसके योग्य चाल चलन। Only let your manner of life be worthy of the gospel of Jesus Christ, as so that whether I come to see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. तो पहली बात है, संत पौलुस यहाँ पर कहना चाहते कि जब हम विश्वास के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं, हमने विश्वास से प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण करा है, प्रभु ग्रहण करा है, कि इस विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं, कि इस विश्वास के अंदर हम कायम हैं। मित्रों, इस पिछले 5 महीनों में 22 मार्च से लेकर के अभी तक 5 महीनों से ज़्यादा समय हो गया। हम में से बहुत से लोग घर से निकलने में डर रहे। हालांकि मैं तो घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ,
सावधानी के साथ, और प्रभु ने अभी तक मुझे संभाला है और वो संभालता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। लेकिन इस दौरान क्या हम विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं? क्या हमारा विश्वास ठंडा पड़ गया है? क्या हमारी आशा में कुछ गुनगुनाहट आ गई है? क्या हमारे जीवन के अंदर आत्मिक गर्माहट कम हो रही है? क्या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर अगर आप हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? कईयों के मन में ये सवाल है। There are many people who might be asking the Lord, Lord, if you exist, why this has happened? Why this pandemic? Why this coronavirus infection and everything? God, we need to know one thing. God is above everything. He is in control of everything. हम इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर इन सब पर अधिकार रखता है। परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, और ये परिस्थितियां वचन के अनुसार हैं। भजन 91 के अंदर आप पढ़िएगा, ये सारी बातें लिखी मैंने शुरू में जब कलीसिया के अंदर हम आराधना कर रहे थे, मार्च महीने के द्वितीय तृतीय सप्ताह, मैंने इन बातों को आपके सामने रखा। मैंने क्या कहा था? प्रभु आपको संभालेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों काड़ में छिपा लेती है, प्रभु ने हमें छिपाए रखा। इन 5-5.5 महीनों प्रभु ने हमें से किसी का बाल बाका नहीं होने दिया। हाँ, कई बीमार हुए, प्रभु ने चंगाई दी। कई दुखी हुए, प्रभु ने दुख से उबारा हमें। कईयों के मन में दुविधा आई, उलझन आई, प्रभु ने उससे हमें उठाया, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और वो अभी भी वही है। ये वही प्रभु है जो 2000 साल पहले आया था दुनिया में। ये वही प्रभु है जिसने आदम को बनाया। ये वही प्रभु है जिसने आदम के बनाने से पहले सारे सृष्टि की रचना करी। ये वही प्रभु है। उसमें कोई रद्द बदल नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ही इज द सेम गॉड हु मेड दिस यूनिवर्स, who created Adam and Eve, who created who became human in Jesus Christ, and who is living today even. And as Jesus was in this world, he said many times, he said, verily verily I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके कार्यों में, उसकी योजना में, उसके विचार में, और आज उसके हमारे बीच में अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है, वह वही है। इसलिए जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करा है, मालिक स्वीकार करा है, तो हमारा जीवन, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। We need to be practicing our Christianity by our action, inner action. दूसरी बात, 28 पद, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। And not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but your salvation and that from God. अब यहाँ पर पौलुस और गहरी बातों को वर्णन करता है। हम इस बात को देख, वो कहता है, और किसी बात में विरोधियों के से भय नहीं खाते। आज ये नई बात नहीं, लेकिन 2000 सालों से कलीसिया को लोगों ने सताया, कलीसिया को गलत समझा गया। पुराने ज़माने में जब रोमी लोगों का शासन था, तो ये बताया जाता था कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कुछ और हो गया, तो मसीह लोगों को कहते इन्हीं की वजह से। क्यों? दूसरी बात, क्योंकि ये कैसर की पूजा नहीं करते और उन मूर्ति की पूजा नहीं करते जिनको ये रोमी लोग मानते थे या यूनानी लोग मानते थे। और एक और बात कहा गया कि ये वो लोग हैं जो अपने प्रभु का मांस और लहू खाते हैं और पीते हैं, प्रभुभोज की बात। तो कई प्रकार से उनको सताया गया और 300 सालों तक उनको सताया गया। उनके प्रमाण मौजूद है आज, जो यूरोप में और रोम के आसपास जो कोलोसियम्स हैं, जो ओपन एयर थिएटर हुआ करते थे। और एक समय ऐसा भी आता था कि जंगली जानवरों को छोड़ा जाता था, तो फिर मसीहों को उनके बीच में छोड़ दिया जाता था और वो मारे जाते थे, खाए जाते थे जानवर के द्वारा, जो भूखे जानवर होते थे, और ये तमाशा देखते थे बैठे बैठे। ये वक्त भी था केवल इसलिए कि उन्होंने प्रभु को मान लिया था, यीशु मसीह को स्वीकार करा था, उस किसी प्रकार से उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उनके लिए कठिनाइयाँ उस समय थी। आज दूसरे प्रकार की तकलीफें,
और दूसरे प्रकार से कलीसिया के लिए कलीसिया के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि सारे जो आरोप हैं प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे जीवन के अंदर ये बातें आएंगी। और मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के हम पढ़ते हैं उसके 8, 9, 10, 11 और 12 पद में कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें और बुरी बातें तुम्हारे खिलाफ बोलें और फैलाएं, तुम्हें सताएं। आनंदित और मगन होना, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले नबियों के साथ जो तुमसे पहले आए उन्होंने ऐसा उनके साथ बर्ताव करा। और आनंदित इसलिए होना कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी, वी आर गॉड इन जीसस क्राइस्ट हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड फॉर हिज ओन पीपल दैट you be happy if because of my gospel you will endure these atrocities and persecution and hard time. You go through this hard time. Be happy and rejoice and joyful because there is a reward in heaven for you, one of all of you. ये होना जरूरी है। तो यहाँ पर यह लिखा है, और किसी बात में विरोधियों का से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। किनके लिए? विरोधियों के लिए। अगर पश्चाताप ना करें उनका विनाश हो जाएगा, अंततः उनका विनाश हो जाएगा, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। ये वो मौका देता है, वो परमिशन देता है कि ठीक है मेरे लोगों को इस हद तक तो परेशान कर लो, वो मुकरेंगे नहीं। और ऐसा ही हो रहा है। कलीसिया आज भी सताई जाती है और कलीसिया आज भी प्रभु के द्वितीय आगमन की बाट जोड़ रही है, और ये पूरा होगा एक दिन। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम मेरे कारण परेशान मत हो, सुसमाचार के कारण तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानी आएंगी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसके 13 से 16 पद। क्या लिखा है देखिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय 13 से 16। तुम है भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पति की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। और अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा हर प्रकार से शांति दे। तुम सब के साथ वो रहे। विरोधियों के लिए लिखा, वो जो विरोध करते हैं, सुसमाचार का विरोध करते हैं, वो कहता है कि इन तमाम बातों के बावजूद तुम लोग भलाई करते रहो, तुम्हारा विरोधी होंगे। हमने देखा कि जब पौलुस ने मिशनरी यात्राएं ली, मिशनरी यात्रा में गया, 3 मिशनरी यात्रा में गया, तो बहुत सी जगह पर उसका विरोध हुआ और उसको मारा भी गया। और लुस्त्रा में जब पत्थर से मारा गया, पत्थरवाह किया गया, तो लोगों ने सोचा कि मर गया है, उसको घसीट करके शहर के बाहर ले गया, छोड़ दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद जब उसके विश्वासी, उसके चेले उसके आसपास आए तो उठ खड़े हुए लहूलुहान, और फिर वहाँ से दूसरी जगह चले गए। तकलीफ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ प्रभु के लोगों के लिए है। ये आज नई बात नहीं, पुराने ज़माने के अंदर नबी लोगों को सताया गया, उससे पहले प्रभु के लोगों को सताया गया। और वो लिखा है इब्रानियों के 11 अध्याय के अंदर अगर पढ़ें, वहाँ लिखा है उनका सताव इतना ज़्यादा था कि वो प्रभु के नाम के लिए कहाँ कहाँ ना भटके। मैं चाहूँगा पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। देखिए क्या लिखा है, 11 अध्याय 33 पद से मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों 11 अध्याय 33 पद से। उन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए।
पत्थरवा किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा हुई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगली और पहाड़ी और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। मित्रों, इससे बड़ी गवाही हमें क्या चाहिए? हम जो प्रभु के लोग हैं, निश्चित रूप से यह हमारा अपना घर नहीं है, हम यहाँ परदेशी हैं। हमारा घर वो जगह है जहाँ उसका सिंहासन है, और एक दिन हम वहाँ पर रहेंगे और उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन इस समय जब हम यहाँ पर हैं, मसीह में आने के बाद शायद 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल, हमें इन बातों को धीरज के साथ सहना, क्योंकि इसके बाद प्रभु के साथ हम अनंत काल तक रहेंगे। दुख और मुसीबत प्रभु के लोगों के भाग में है। संत पौलुस को प्रभु ने कह दिया कि पौलुस, मैं तुझे भेजता हूँ अन्य जातियों में, पर मैं जानता हूँ कि तू मेरे कारण बहुत दुख उठाएगा, तुझे तकलीफ दी जाएगी, तुझे मारा जाएगा, तुझे लानतान किया जाएगा, तेरा उपहास किया जाएगा, पर पौलुस मैं तेरे साथ रहूँगा उन तमाम परिस्थितियों में। और आज भी ऐसा मित्रों, अगर हम यीशु मसीह के लोग हैं, उसके नाम के सुसमाचार का प्रचार करते, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। तीसरी बात, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यहाँ इसी बात को दोबारा कहा गया, उसके लिए दुख भी उठाओ, तकलीफ भी उठाओ, कष्ट भी उठाओ। और ये दुख और तकलीफ जो है प्रभु के लोगों के लिए एक प्रकार से एक हेरिटेज है उनका, ये हमारे लिए ठहराया गया। संत पौलुस लिखता है अपने आत्मिक बेटे को, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने 1 से लेकर के 5 पद तक। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 पद से। परमेश्वर और मसीह को गवाह करके, जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, सहनशीलता मतलब दुख में सहनशील बनो। जब तकलीफ उठाओ, तकलीफ लोग दें, तुम्हें सताए, तो सहनशीलता धारण करो, सह लो। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के द्वारा उलाहना दो और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरे उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज ऐसा ही तो हो रहा, बहुत से झूठे शिक्षक खड़े हो रहे हैं और वो अपने हिसाब से शिक्षा देते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं। देयर आर पीपल इवन टुडे, सम ऑफ द heretical teachings, they have in their teaching some errors, they don't proclaim, but it is there and they are proclaiming, and people who are following them because of they want to listen good things, so they have started following them. And there are today thousands of people of this nature, and it is there very clearly. St. Paul says, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion. To suit their own passion. And today many people go from this place and join some other groups. I have told you that many times after the worship service over, I see Bible, Mormon's Bible. Someone will come and keep other things, some tracts are there of some heretical teaching, and some of the people will take them and lead them, and they start following them. This is prophesied 2000 years ago. This is going to happen in the church. It's happening today. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पर लिखा है, और अपने अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। पर जो प्रभु के लोग हैं, यहाँ खासकर जो फिलिपी में लोग थे, आज भी इस चर्च के लोग हैं,
प्रभु का वचन हमसे कहता है, मैं आपसे कहता हूँ क्या करना है, हमें सब बातों में सावधान रहना, नीड टू बी केयरफुल एवरीथिंग। दुख उठा, नीड टू एंड्योर सफरिंग फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट एंड देन डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। सुसमाचार का प्रचार करते रहो अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। और चौथी बात, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। अब ये पौलुस की अपनी गवाही है, पौलुस की अपनी गवाही है। अब पौलुस की गवाही का हमने कई बार देखा, यात्राओं को देखा, ये इन पत्रियों को देख रहे हैं। प्रभु ने उससे बातचीत करी जब वो दमिश्क को जा रहा था और वो अंधा हो गया, उसकी आंखें जाती रहीं और 72 घंटे वो अंधा रहा। दमिश्क में पहुंचकर उस सीधी नामक गली में रहता था, और जहाँ पर हनन्याह आया 72 घंटे के बीतने पर, उसने क्या कहा, हे भाई शाऊल देखने लग। और जब उसने उसके हर सर पर हाथ रखा तो लिखा कि उसके आंखों से छिलके समान कुछ गिर पड़ा। वो कवर था जो परमेश्वर ने कर लगा दिया था, प्रभु ने कर, ताकि उसकी आंखें ठीक रहें, और वो गिर पड़े और वो फिर से देखने लग गया। और उसके बाद वो अरब को चला गया, 3 साल रहा, प्रभु से सीखता रहा उसकी आत्मा से। और फिर जब वापस लौटा 3 साल के बाद, तो वो चला गया यरूशलेम, वहाँ पर वो 15 दिन तक पतरस के साथ रहा, उससे सीखता रहा। इसके बाद अंताक्या आया, और वो कुछ समय के बाद उससे अब बरनबास को मिशनरी सेवा के लिए भेजा गया, जिसके वर्णन को हमने देखा। और इसके बाद वो अब इस वक्त जब पत्र लिख रहा है तो जेल खाने में है, और वहाँ से पत्र लिख रहा है, और वो कहता है कि मेरा अनुसरण करो, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। अब पौलुस को उन्होंने क्या करते देखा, तमाम कठिनाइयों को सहते हुए, तमाम दुखों को सहते हुए, दूसरों के लिए आंसू बहाते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए, और जगह जगह कलीसिया की स्थापना करते देखा। ये कार्य अगर पौलुस ने किया तो आज मुझे और आपको करने की आवश्यकता, हमें इस काम को अपने जीवन के अंदर लाने की आवश्यकता। और अब भी तुम सुनते हो कि जैसा मैं हूँ वैसा ही करता हूँ, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। और ये अपने जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन कर रहा है। इसके थोड़े समय के बाद संत पौलुस को शहादत देनी पड़ी सुसमाचार के लिए, उसके लिए वो तैयार रहा। मित्रों, ये कलीसिया एक जागृत कलीसिया है, ये कलीसिया एक मजबूत कलीसिया विश्वास में, ये कलीसिया प्रभु के वचन पर ध्यान देने वाली कलीसिया, ये कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया, सब कुछ केवल सुसमाचार के लिए। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? परमेश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस दिस चर्च ऑफ एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च एंड यूज दिस चर्च फॉर द एनहांसमेंट ऑफ हिज किंगडम टिल ही रिटर्न्स। जब तक दोबारा ना आए, इस कार्य का हम अंदर बने रहें, आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपके विश्वास युक्ता के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु हम चाहते हैं कि जो कुछ वचन आज हमने पढ़ा प्रभु उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं प्रभु आपको पसंद आए। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। चाहते प्रभु कि वचन में बढ़ते हुए सदैव आपकी महिमा कर सकें। हम आपकी स्तुति करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस लेटर ऑफ सेंट पॉल टू चर्च एट फिलिपाई, एंड वी नो लॉर्ड दैट दिस letter has many things to teach us. As we continue to meditate upon this letter, Lord, speak to us and guide us. We thank you, Lord, that you are with us and you heard our prayer. Make us fruitful, Lord, so that people who live with us may know that we belong to Jesus Christ. We are His people. We are the followers of Jesus Christ. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement, and these are very regular announcement, and I don't want to repeat everything, but you know, every day we have this evening Bible study at 7:30, and then the church office is open
every day, weekdays, Monday to Saturday, from 10:30 to evening 5:30. You are cordially invited to come and spend some time with your pastor. If you have any prayer request, you can share, we can pray for you so that you may continue to grow in the Lord. Also, if you want to deposit your church fund or Sunday offering, you may do so. The cashier sits there for 8 hours and you can get the receipt. Let's continue to pray for our country. Now this month, today is 1st of September, gradually things will be opened now, and within 20 days time maybe the worship also, it will be known to us whenever it happens. So please pray and wait upon the Lord, and I hope that everything will be possible by the grace of God. Pray for this congregation, pray for all our families in Nepali congregation, Hindi congregation and English congregation, our elders, our youth, our children, our WC sisters, our each family. Let's pray that God may bless this congregation. Also remember our conference, daily annual conference, our Bishop Subhadsri Mandal, Madam Sudipta Mandal, our daily regional conference Executive Secretary Reverend Sujit Das, our Treasurer Reverend Varinder Kumar, our lay leader Mr. Anil Nathaniel, and all the people who are working hard to see that God's kingdom is extended and His name is glorified. Pray for our institutions, our hostels, and each congregation, each churches of Delhi annual conference. It is spread in whole of Rajasthan, in Punjab, in Himachal, and in Haryana and Delhi. Pray that God may continue to bless and bless also entire MCI, Methodist Church in India. Pray for our government, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, MLAs, police and army Jawan, and everyone who is laboring hard to see that this land continue to be protected and we have His peace in our minds. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते। प्रभु, जो कुछ हमने सीखा, हमने जाना, उसमें बढ़ सकें और हमारे जीवन आपको पसंद आए। जो वचन मैंने सीखा प्रभु, हम चाहते कि वो हमारे हृदय के अंदर प्रभु फलवंतित हो, उसमें 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न हो। कलीसिया की रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की फाकत शराकत हमें सभी के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आपके साथ रहे, आप सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, प्रभु के अनुग्रह के साय के नीचे निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको संभाले, आपकी सहायता करे। सबको शुभ रात्रि। जय मसीह।